a song taking pot shots at Salman is impossible for two reasons. One is, for those of you who know Salman Khan, you know that any intelligent person will not go around making fun of Salman Khan. It is not a safe thing to do. So that is one reason why that song is not about Salman Khan. Secondly, if you all know Amir Khan, the man has too much respect for his cinema to sit with me and say, let's plan a song about Salman Khan. It is a completely silly thing to even conceive of. If anything, when you see the song, when you see the 2-minute version of the song, the only person the song makes fun of is actually Amir Khan. It actually makes fun of Amir Khan's first look in Qayamat Se Qayamat Tak, and you see that in the song. So you can think that just because the song talks about a good-looking guy who can't dance, you can call it about whoever you want. All I put to you is, it is simply a fun song in my film. It has nothing to do with Salman Khan. I have too much respect and I suppose a little nervousness about Salman Bhai. I know him personally. That's not a man you make fun of lightly. You do it at serious danger to yourself. So no, the song is not about Salman Khan. I'm sorry to disappoint you. But I really think it's a great song and it does make fun of Amir. And I think what makes it fantastic is that Amir, he looked at it, he laughed and said, I think it's great, let's keep it. Because I had to check with him, I was making fun of him. So yeah, the only person the song makes fun of is Amir, not Salman. And when you see the song, you'll know this. How does director Abbas rate lyricist Abbas? Well, I've been a lyricist for much longer than I've been a director. It's just that I haven't done too much work in lyrics because most people want to do very न्यूट्रल सॉन्ग्स के हर सिचुएशन में एक रोमांटिक गाना कर दो, एक आइटम गाना कर दो, जो मैं नहीं कर पाता हूँ. मुझे सिचुएशन लगता है, मुझे कहानी लगती है और ज़्यादातर फिल्में बिना कहानी और बिना सिचुएशन के बनती है. तो फाइनली जिस तरह के लिरिक्स मुझे करने थे उसके लिए मुझे अपनी फिल्म बनानी पड़ी, तो मैंने बना ली. अब आप जिन्हें लिहाज से पूछो well, if you can't take blessings of people whose work you respect, that Nasir Saab's family has been associated with so many great films with Shami Kapoor, and when a film is coming from that family, even Taare Zameen Par was released exactly the same way. उनका एक बहुत पुराना रिश्ता है शमी जी के साथ. वो बहुत मानी हुई, बहुत पहुँची हुई, बहुत ही बड़े दिल की हस्ती है. तो हमें लगता है कि उनसे आशीर्वाद लेकर, उनसे दुआ लेकर अगर हम हमारा काम शुरू करेंगे तो और भी बेहतर होगा. Which is why many times Amir is known as the tough taskmaster. Was there any time where there will be a lot of reports written about Amir interfering in terms of yes. the work? Was it true? Interfering is the word, I mean. Unfortunately, I never had the pleasure of locking horns with Amir and figuring out whether he was interfering and how much I would need to fight him, because at the time that I was shooting this film, he was shooting Taare Zameen Par. So I know Amir would have liked to be much more involved, okay? But it's very easy to use words like interfering because it's a fun word in the media to use. The fact of the matter is, अगर आपका प्रोड्यूसर आमिर खान है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो, किसी भी हीरो के मुकाबले it is much better in terms of his choice of scripts, in terms of his choice of subjects, in the way he's done films. अगर आपके पास आमिर खान है, अगर आपके पास मंसूर खान है, अगर आप एक पहली बार फिल्म बना रहे हो, पहली बार के डायरेक्टर हो और इन लोगों का एक्सपीरियंस आपको अवेलेबल है, अगर आप उससे कतराते हैं, अगर आप उसको इंटरफियरेंस समझते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और आपसे बड़ा ईगोसेंट्रिक आदमी दुनिया में कोई नहीं है. आई वेलकम द सजेशंस आई गॉट. आई थिंक दैट हैविंग मंसूर खान ऑन माई सेट वाज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रिफाइन माई आर्ट. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि उनमें एक कमाल की काबिलियत है. जो सबसे पहली बात उन्होंने मुझे कही थी कि अब्बास, मैं यहाँ तुम्हारी फिल्म बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इसलिए तुम्हें मदद करने आया हूँ ताकि तुम तुम्हारी फिल्म बना सको. तो उन्होंने एक बार भी मंसूर खान ने मुझे सेट पे नहीं कहा कि तुम्हें ये शॉट ऐसे लेना चाहिए. बस उनका एक ही काम था कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, जो आमिर को, जो मंसूर को, जो सबको बहुत पसंद आई थी, वो सिर्फ यही चाहते थे कि मैं उस स्क्रिप्ट को पूरी जस्टिस दे पाऊँ. और उनका सारा सपोर्ट, आमिर का जो सपोर्ट रहा एडिटिंग के दौरान, जितना उनका फीडबैक रहा, जितना उन्होंने सपोर्ट किया है, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं वो सपोर्ट ना लूँ, अगर मैं उस एक्सपीरियंस से कतराऊँ, तो मुझसे बड़ा इडियट दुनिया में कोई नहीं है और मुझे इडियट बन के काम करना अच्छा नहीं लगता है. सो येस, आई हैव एंजॉयड द रिएक्शन आई गॉट फ्रॉम आमिर, आई हैव एंजॉयड द फीडबैक, एंड आई थिंक द फिल्म हैज बिकम मच बेटर बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन. And what was the trigger point for a film like this? Because the films that you wrote earlier when, not this kind of youthful, romantic, I believe, slow. And was it a little delayed? Do you think so, or is it just? It was a little delayed because the film was initially to be produced by Jhamu Sugandh. कुछ misconceptions है इस फिल्म के बारे में जो मैं क्लियर करना चाहूँगा. पहली बात तो ये कि ये फिल्म इमरान को लॉन्च करने के लिए बनाई गई. जी नहीं, इमरान को इस फिल्म में जब झामू सुगंध डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तब लिया गया था बिकॉज ही वॉज परफेक्ट फॉर द पार्ट. दिस फिल्म वॉज नॉट डिजाइन फॉर इमरान. इमरान वॉज अ गॉड सेंड, क्योंकि मैं ढूंढे जा रहा था कि मुझे वो करेक्ट हीरो मिल जाए जो एग्जैक्टली जय सिंह राठौड़ के पार्ट के लिए परफेक्ट हो. और इमरान को हमने पहले कास्ट कर लिया था जब आमिर प्रोड्यूसर थे भी नहीं.
दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि पहले कोई और म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम मैंने प्रेस में पढ़ा है और बाद में जब आमिर प्रोड्यूसर बने तब रहमान को लाया गया। नहीं, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब झामू जी के साथ फिल्म नहीं बन पा रही थी और हम आमिर जी के पास स्क्रिप्ट ले गए, तब स्क्रिप्ट के साथ मैं 5 गाने जो रहमान ने किए थे वो उनके पास ले गया और आमिर को गाने उतने ही पसंद आए जितनी उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। सो या देयर वाज अ डिले बिकॉज झामू जी कुडंट मेक इट एंड देन द होल प्रोजेक्ट चेंज्ड हैंड्स, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ ईयर। But I think that is benefited because Amir mounted the film in a certain way. जो opportunities हमें मिली, जिस तरह की फिल्म हम बना पाए, जिस तरह की पब्लिसिटी मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सारी पब्लिसिटी इसलिए नहीं है कि अब्बास सारोल अपनी पहली फिल्म बना रहा है। इंशाल्लाह मेरी अगली फिल्म के अंदर आप लोग इसलिए इंटरेस्टेड होगी क्योंकि मेरी फिल्म होगी, बट इस वक्त ये एक्साइटमेंट है कि एक आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म आ रही है एंड आई थिंक दैट इज वंडरफुल फॉर द फेट ऑफ द फिल्म।